Or story. sir, you take any kind of oath, sir? Pardon अमन, क्या कह रहे थे भाई? Sir, do you take any type of oath? That's why you Yeah, anytime. don't trim your जी beard, जी sir. जी. Let's enjoy the look, and later we will see. And it's just like that. We say, ज्यादा में I don't like to be very philosophical here, but थोड़ा सा ये है कि मेनली तो जो ग्रोथ करनी है वो अंदर से करनी है यार. देयर मस्ट बी ग्रोथ इन द थॉट्स, कि वो किस प्रकार से और हाइजीनिक हो जाए और नेचुरल हो जाए, क्लासेज हैं कैसे और स्पॉन्टेनियस हो और ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो उसके बारे में चलता रहता है. ये तो लुक है दैट लुक की तो खैर. जी, लेट मी कम देयर बाय, लेट्स डिस्कस अ स्टोरी. सो एक स्टोरी लेते हैं भाई, एंड वी एंजॉय दिस वन इन द क्लास. एज पर अमन रिक्वायरमेंट, एज per Aman requirement, that most of the class that will be conducted in English, I'll be explaining you the English line in English. I'm not going to translate this, that because you very well you know about this thing. That translation you know very well. These are very simple lines, so there is no need to describe a lot. There is no need to narrate a lot about this. But how we can speak spontaneously, how we can feel the essence of the language. We have to see that one. The important thing is this: that how we can sense, how we can feel the essence of the language. That's more important. So you see, first of all, because when you speak at the time, your mind, your tongue, your facial expression, everything, it must match with your speech. That is called a perfect speech. Otherwise, if you are speaking just like if you are speaking anything totally that's in English, whether the listener is comfortable or not, then what's the use of that? So I'm just learning to take some pauses. I'm learning how to take pause in between, and how can we do a good acting while speaking. So this is what that's in incubation. That is in incubation. एक शब्द होता है ना, incubation. Incubation आप ये समझ लीजिए कि जो incubator होते हैं, जिसमें कोई जो क्या बोलते हैं incubation को, है किसी के पास कोई अच्छा सा शब्द? नहीं. इंक्यूबेशन, जब आप ये कह लीजिए सेना टाइप, क्या कहें उसको, दैट एग्जैक्ट इट्स नॉट स्ट्राइकिंग टू माय माइंड, बट आएगा बताएंगे, आएगा बताएंगे, सही आएगा तब बताएंगे. Let me see that. Let's see that it's story number 65. This is the donkey's lesson. It is. Sir, जी. this word is used psychology in a creative, uh, that is a chapter, creative children in Okay. incubation use होता है. एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब आप ये कह लीजिए कि बिफोर कमिंग टू द फाइनल स्टेज, before coming to the final stage, when something is under process, when something is We under can say, process. sir, we can say intermediate process, intermediate level. Not intermediate level, it's a biology word actually. This word is related to biology. When the eggs, eggs are incubated, eggs are incubated, it means that उनको अंडे सेना टाइप्स होता है ना, अंडे सेना, उनको भी वो इंक्यूबेटर होते हैं जिसमें उसको हीट देते हैं, है ना, और फिर वो बच्चा बाहर निकल के आता है, कुछ इस प्रकार से होता है. उसको क्या बोलते हैं, कम करना को भी तो लेसन ही बोलते हैं ना. इट विल लेसन योर पेन. एक तो ये लेसन होता है, दूसरा एक वो उसकी स्पेलिंग भी सेम ही होती है क्या, होता है ना, कम करना, लेस. या अब की बार आ गई ध्यान में, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? जी. लेसन का मतलब और कम करना भी होता है, पर स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है उसमें भाई. ये जो लेसन होता है इसका मतलब तो पार्ट होता है, इसका मतलब तो आप समझते ही हैं, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन. उस लेसन का मतलब कम करना, उसकी स्पेलिंग में ईएन आ जाएगा लास्ट में, उसमें ओन नहीं होता है, उसमें ईएन हो जाएगा. किसी भी शब्द के आगे या पीछे ईएन लग जाए तो उसको वर्ब बना देता है. If we make less a verb, if we treat less as a verb, then we make it lesson. हम्म? मैं जो बात समझाना चाहता हूँ समझ पाए डॉक्टर साहब? कुछ बड़ी बात है डॉक्टर Yes करण. sir. Yes sir. सर ये लेसन का तो पता चल गया सर, मतलब पाठ पढ़ाना. तो दूसरे लेसन का क्या मतलब बोला सर आपने? उसका ये बोल
जैसे एक शब्द होता है सर, लिटल, लेस, लिस्ट। जिस प्रकार से मच, मोर, मोस्ट होता है, वो एडजेक्टिव होते हैं ना, मच, मोर, मोस्ट, या मेनी, मोर, मोस्ट। यहां तक ठीक बात है? जी। मेनी, मोर, मोस्ट, या मच, मोर, मोस्ट होता है। उसी प्रकार से कम के लिए हम यूज करते हैं लिटल, लेस, लिस्ट। लिटल, लेस, लिस्ट। जिस प्रकार से गुड, बेटर, बेस्ट होता है, समझिएगा आराम से। अच्छा समझ, अरे डोली भी दिख रही भाई आज तो जी। जी, Morning, sir. या गुड इवनिंग डोली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, ममता कुंडू एंड रविंदर शोरान जी, नीतू लाकड़ा। यदि आपसे संभव हो सके तो कुछ स्टूडेंट और अपना कैमरा ऑन कर ले भाई, मुझे कैमरा ऑन में थोड़ी सी ज्यादा सुविधा रहती है, यदि आपसे कंफर्टेबल हो पाए तो देखना भाई। And दोस्तों, sir, what about few, sir? You say little, least, or and what about few, sir? Where we are use few? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है। फ्यू और लिटल में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए होता है, लिटल होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है जी। जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए होता है, लिटल होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। डिग्रीज की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये बात एक बात पूरी हो जाए तो ही आगे बढ़ेंगे। बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारा जो टाइटल है, जो स्टोरी का टाइटल है, उसकी स्पेलिंग LESSON होती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं ये डबल एस नहीं होता है, इसको SS बोलते हैं। डबल एस एक गलत है, वैसे हम डबल एस बोल भी दे तो भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सो बात बताना चाहता था कि एक शब्द और होता है लेसन का मतलब किसी चीज को और कम करना, किसी चीज को और कम करना। तो क्या होता है कि जैसे डिग्री होती है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है ना, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। जिस प्रकार से गुड, गुड, बेटर, बेस्ट सभी ने सुना है। गुड का मतलब अच्छा होता है, बेटर का मतलब और अच्छा होता है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा होता है। बैड का मतलब बुरा होता है, वर्स्ट का मतलब और बुरा होता है, वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा होता है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, मोर ब्यूटीफुल का मतलब और सुंदर होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे सुंदर होता है। यदि शब्द बड़ा है तो उसके आगे मोर या मोस्ट लग जाते हैं। यदि शब्द छोटा है तो उसके ER या EST लग जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है जी? भाई किसी को कोई बात अधूरी रह जाए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पूछिएगा जरूर, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है, काफी लोग दैट देयर आर सो मेनी पीपल वो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। वो एडजेक्टिव नहीं, वो एडजेक्टिव होता है। वो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब विशेषण होता है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। अभी जो जिस प्रकार से मैंने बताया, यदि शब्द छोटा है तो उसके ER या EST लगा देंगे। जैसे फाइन होता है, फाइन होता है, फाइनर होता है, फाइनेस्ट होता है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट होता है। या कोई भी और एडजेक्टिव है, जैसे क्या बताएं, जैसे बिग सर। बिग, बिगर, बिगेस्ट। वेरी नाइस भाई, ऐसे आप बीच में ऐड Great, कर। greater, greatest, sir. ग्रेट होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ये बात तो सबको क्लियर है, इसमें शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट है नहीं। उसी प्रकार से एक शब्द जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसके तो तीनों अलग अलग होते हैं। बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। किसी भी चीज को और बुरा बनाना। अब क्या है कि वर्स को आप एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। वर्स को WORSE, वर्स को आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जब आप वर्ब यूज करेंगे तो इसके आगे EN लग जाएगा, ये वर्सन हो जाएगा। यानी ये चीज तो सिचुएशन को और बुरा बना देगी। इट विल वर्सन हिज और हर कंडीशन। इट विल वर्सन हिज और हर कंडीशन, या इस कंडीशन को और बुरा बना देगी। ठीक बात है। तो उसी प्रकार से लिटल की जो सेकंड डिग्री लेस होती है, और किसी चीज को और कम करना वो लेसन होता है। LESSEN, ON नहीं होता है, EN होता है वो। ठीक बात है, यहां तक बात बन गई क्या? या किसी को डाउट रह गया वो तो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, एक बार और एक बार वो रिपीट कर दे। My dear Dolly, when I started the class, at the time I read the title. I read the title of the story. The title was The Donkey's Lesson. The Donkey's Lesson, this was the title.
देयर इज अ होमोनिम्स, एक होता है होमोनिम्स। होमो का मतलब सेम होता है, निम का मतलब नाम होता है। होमो का मतलब सेम होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे ये है ना होमो, होमोसेक्सुअल होते हैं, या और भी होमो काफी जगह यूज होता है। होमोफोन्स होते हैं। जिन दो शब्दों की साउंड एक जैसी होती है उनको होमोनिम्स, उनको होमोफोन्स बोलते हैं, उनको होमोफोन्स बोलते हैं। जो होमोनिम्स भी होते हैं, जो दो नाम एक जैसे होते हैं, उनको होमोनिम्स बोलते हैं, क्योंकि निम का मतलब नाम होता है। एन वाई एम आ जाए, एन ओ एम आ जाए, एन ई एम आ जाए, सभी का मतलब ये भी, जहां भी निम की प्रोनाउंसिएशन आएगी अर्थ उसका हमेशा नाम से ही संबंधित होगा। मैंने बताया होमोनिम्स, बताया मैंने होमोफोन्स बताया। दो शब्द लेसन है, एक की स्पेलिंग में लास्ट में ओ एन है, एक में ई एन है, यहां तक ठीक है बात। दो शब्द है, एक के दोनों जो है वो होमोफोन्स हैं, दोनों होमोफोन्स हैं, साउंड दोनों की सेम आ रही है, पर एक का जो मीनिंग, एक 1 मिनट भाई जी, एक का मीनिंग है, एक का मीनिंग पार्ट होता है, एक का मतलब कम करना होता है। जिसकी स्पेलिंग LESSON होती है वो पार्ट होता है, LESSEN होती है उसका मतलब कम करना होता है। यहां तक ठीक है बात। क्योंकि जैसे लाइट से लाइटन हो जाता है, लाइट से लाइटन हो जाता है, ब्राइट से ब्राइटन हो जाता है, हार्ड से हार्डन हो जाता है, व्हाइट से व्हाइटन हो जाता है, ग्लेड से ग्लेडन हो जाता है, रेड से रेडन हो जाता है, करेज से इनकरेज हो जाता है, रिच से एनरिच हो जाता है। किसी भी शब्द के शुरुआत में या लास्ट में ईएन लगा दे तो वो उसको वर्ब बना देता है। ये बात ठीक है। लेस का मतलब यदि कम करना है और इसके आगे मैं ईएन लगा दूं तो ये लेसन हो जाएगा, इसका मतलब और कम करना। सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा था भाई। बन गई बात अमन भाई, बनी बात कुछ? यस सर, यस सर। भाई किसी भाई बहन को, अंतिमा भी कह रही है सर बन गई बात, और किसी भाई बहन को यदि कम समझ में आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं भाई। जी, क्योंकि जो बात बताई जाए एटलीस्ट वो तो ढंग से समझ में आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं हो। चाहे एक ही बात सीख ले, क्या बात है, पूरी क्लास में यदि एक बात भी ढंग से समझ में आ जाए, एक मास्टरपीस समझ में आ जाए, यदि हमारे एक मास्टरपीस समझ में आ गया है तो दूसरी तो हमें फिर शब्द बनाना शुरू कर देंगे। जो अपनी वोकैबुलरी वाली बुक है उसमें मैंने कम से कम 200 शब्द ऐसे लिखे हुए हैं जिनके लास्ट में या आगे ईएन लगा के नया शब्द बनाया हुआ है। डार्क से डार्क, डार्क का मतलब गहरा होता है, डार्क का मतलब अंधेरा होता है, और डार्कन का मतलब उसको और गहरा करना है ना, और गहरा बनाना या और गहरा करना हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द डंकीज लेसन। डंकीज लेसन दिस इज, देयर वाज अ मैन इन अ विलेज, देयर वाज अ मैन इन अ विलेज, ही हैड अ डंकी, ही हैड अ डंकी। ये भाई पांचों सातों ममता बता देगी। ममता जल्दी से कैन माइक ऑन कर लीजिए भाई। जी ममता। सर मुझे ना ये फोन में कनेक्ट कर रखे है, ये दिख ही नहीं रहा कुछ भी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कर्ण एक बार माइक ऑन कर लीजिए यदि आप कंफर्टेबल हो तो। हाँ सर बोलो। देखिए इस लाइन की हिंदी बनती है, उसके पास एक डंकी था, ही हैड अ डंकी, ठीक बात है सर। ठीक है सर। यदि उसके पास अब है तो, पहले था तो ही हैड अ डंकी, और अब है तो He have a donkey, sir. ही He हैज अ has डंकी। he has हैज a donkey, sir. He has a donkey, sir. एक बार डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। अमन भाई आपकी टर्न, आपको आपसे आपके लेवल की बातें पूछी जाएंगे। ही हैज ए डंकी। और उसके पास होगा तो, होगा तो ही ही विल, बोलो बोलो पूरा बोलो, फिर हिचक क्यों रहे हो? ही विल हैव ए डंकी। या मैंने सोचा ये कहेंगे ही विल बी अ डंकी, इसका क्या अर्थ निकल जाएगा? ही विल बी लगा दिया, ही विल बी अ डोंकी, मतलब जी करण भाई। जी जी। वो एक गधा होगा सर। हाँ वो खुद बन जाएगा, यदि बी यस लगा दिया सर। तो वो खुद बन जाएगा भाई। ही विल बी अ डंकी मतलब वो खुद गधा बन जाएगा। उसके पास होगा तो ही विल हैव अ डंकी, ही विल, और होना चाहिए तो भाई होना चाहिए। करण करण, why are you getting late यार? This is quite easy, I think that you can easily tell। जी करण। बड़ा ही नहीं अब तक। पता सर। जी होना चाहिए उसके पास
शुड बी सर। शुड भी तो वो उसको खुद होना हो जाएगा। कौन बोला है शुड भी? तो वो खुद, यानी कि उसको गधा बनना चाहिए। ही शुड बी अ डंकी, ही शुड हैव अ डंकी, ही शुड हैव अ डंकी शुड है। हैव। ओके। जी जी, ही शुड हैव अ डंकी होना चाहिए, शुड बी है। बोले तो खुद हो गया। हाँ, बी बोले He तो वो would खुद हो have a जाएगा। donkey. Sir, he would have a donkey. या चाहे वुड है वो कह दीजिए, विल है वो कह दीजिए, एक ही बात है। विल हैव अ डंकी, देखिए ये है कि उसके पास है तो ही हैज, उसके पास था तो ही हैड, होगा तो ही विल है, वो होना चाहिए ही शुड है, और होना चाहिए था उसके पास एक गधा होना चाहिए था। कैसे बोलेंगे पवन भाई? He would have a donkey. एक बार पवन, एक बार गौर Sir, से देखेगा। he उसके would have a पास, donkey. पवन एक बार कैमरा ऑन कर लो यार, कब मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए। अदर स्टूडेंट आर ऑल्सो काइंडली रिक्वेस्टेड। देखिए हमारे स्वदेशी हैं, कनाडा से कैमरा ऑन किए हुए हैं, हम अपने गली में नहीं कर रहे। सर गाड़ी चला रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अदर स्टूडेंट, विनीता इज देयर, विनीता है, ललित बेनीवाली, अदर स्टूडेंट आर आल्सो देयर। एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, एक बार बात कर रहा हूं आपसे, फिर कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, यदि मेरे पास कुछ चीज है, चलो कोई बात नहीं, गधे को छोड़िए, डायरी ले लेते हैं, क्या बात हुई। यदि मेरे पास ये डायरी है तो आई हैव दिस डायरी, और यदि मेरे पास थी तो आई हैड अ डायरी। मेरे पास थी तो आई हैड अ डायरी, होगी तो आई विल हैव अ डायरी, होनी चाहिए आई शुड हैव अ डायरी, होनी चाहिए आई शुड हैव अ डायरी। और अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास यार डायरी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी नहीं, होनी चाहिए थी। कैसे बोलूं उसको? सर आई शुड हैड ए डायरी। वो तो मतलब होनी चाहिए मेरे पास, यानी मेरे पास है नहीं पर होनी चाहिए, जबकि मैं बोल रहा हूं होनी चाहिए थी। He चलो एक should बात, have. He should have a diary. वो तो वही बात होगी डॉक्टर साहब। हैड सर, एच ए डी। शुड नहीं, हैड। शुड के बाद कभी हेड नहीं लगता है भाई, शुड नहीं के लगता बाद। सर, ओके। एक बार फिर गौर कीजिएगा, एक बार लाइन समझ में आ गई तो मजे आ जाएंगे। देखिए क्या है कि एक दिन मेरी मदर ने और मेरी मिसेज ने जिद कर ली। मैं कह रहा था माँ मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ, और बस बसों में इतनी भीड़ होती है, वैसे भी रक्षाबंधन के आसपास का टाइम था शायद मेरे हिसाब से। गौर कीजिएगा, रक्षाबंधन के आसपास मेरी मदर और मेरी मिसेज ने ये जिद कर ली कि आप अपना काम कर लीजिए, हम चले जाएंगे। मैंने कहा मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं क्लास टाइम तक आ भी जाऊंगा वापस, चलो मैं गाड़ी में ही चल पड़ते हैं सारे, ठीक बात है। पर उन्होंने जिद कर ली, नहीं हम आराम से बस में बैठ के जाएंगे, एक जगह पर उतरना है वहां आ जाएंगे। बाद में पता चला कि वहां पुल बन रहा था, और भाई उन्होंने पीछे ही उतार दिया। वहां बहुत ज्यादा, देयर वाज अ ग्रेट रश देयर, वहां भी काफी रश था, और उनको ऑटो में इतनी भीड़ में जाना पड़ा, और वापिस आते वक्त भी फिर सारे रास्ते ही खड़ा रहना पड़ा। और थोड़ी सी मदर है, उससे ज्यादा खड़ा नहीं रहा जाता, तो वो बड़ा उसने अनकंफर्टेबल सा फील किया। बार 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 जैसे मेरी मिसेज यही कह रही थी कि माँ देख गाड़ी होनी चाहिए थी, है ना, गाड़ी होनी चाहिए थी, गाड़ी होनी चाहिए थी। सीन समझ गए भाई? आई सर, आई आई हैव ए डायरी सर। नहीं, नहीं, गलत हो डायरी गया। को तो गाड़ी, अब गाड़ी आ गई है आई हैव ए कार। जी। पास्ट का पा हमें सर, एक्चुअली आई थिंक हमने पढ़ा था ये मतलब ये हुई थी क्लास में बात इसके बारे में। बिल्कुल हुई थी याद भाई। नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सुदेश भाई, अगेन मैसेज। सर maybe I should have had a car. सर अरे आई ये वुड। इसको बोलते हैं श्लोक, इसको बोलते हैं श्लोक, कमाल श्लोक। जिस भी भाई बहन को ये बात समझ में आ गई हो तो एक नया कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। वी शुड हैव हैड अ कार, वी शुड हैव हैड अ कार। जी, हैव के साथ हेड लगा है, समझ में आया होगा, या अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर रिपीट कर दें। कई बार आपको ऐसा रिपेंटेंस फील होता है, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए थी और अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, है ना, मेरे पास यानी कि होनी चाहिए थी पर वो चीज नहीं थी। तो मैं पास में पोजीशन के लिए कोई बात बता रहा था कि मेरे पास कोई चीज है तो आई हैव, थी तो आई हैड, होगी तो आई विल हैव, होनी चाहिए आई शुड हैव, होनी चाहिए जैसे अब मैं फील करूं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, आई शुड हैव दैट थिंग। और मैं ये करूं कि उस समय मेरे पास होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड, आई शुड हैव हैड।
श्लोक को सही समझ में आ गया है? बाकी दोस्तों को भी एक बार देख लेना भाई। जी सर आप क्लास रिकॉर्ड करते हो लेकिन भेजते नहीं ना ग्रुप में, इसीलिए कुछ नहीं, ये क्लास कंफ्यूजन रह जाता। रिकॉर्ड होती ही आ जाएगी, रिकॉर्ड होती ही आ जाएगी डोली, पक्की आएगी, है ना? ग्रुप में आ जाएगी, फिर समझ लेना। ठीक बात है जी। सो आगे बढ़ते हैं। Let's take the story that there was a man in a village. He had a donkey. He would tie the bag of salt on donkey's back and sell them in the market. On the way, they had to cross a stream. They had to cross a stream. There is nothing hard in this one. I think that most of the words they are very common. And my friend, you must be getting all these. The words they are not very hard. There was a man. I have read the complete paragraph. I have read the complete paragraph, and you see this thing that there was a man in a village. He had a donkey. He would tie the bags of salt on the donkey's back and sell them in the market. On the way, they had to cross a stream. On the way, they had to cross a stream. Is the first paragraph complete? Did you get it? Lalit Beniwal is there in the class. Mr. Lalit, did you understand the first paragraph? Ji Lalit Bhai. Yes or no? Yes, sir. Did you understand what's the Hindi of this paragraph? Did you understand the complete Hindi of this? सर ये स्टीम का मीनिंग पता नहीं चला। Steam means you may say a river. River. Yeah, stream in a branch of river, not a complete river. River, it's very hard to cross a river. So it's a stream, it's a current of the water, flow of the water, where small canal, just like a canal, you can say, नहर. ओके सर। They had to cross, उनको cross करनी पड़ती थी। एक दिन की बात है, donkey's foot slipped. Donkey's foot slipped and he fell into the water with the salt bag and all. With the salt bag and all, the man helped the donkey on his feet. When they resumed their journey, the donkey joys knew no bound. The donkey's joy knew no bound. Most of the salt had melted away and he felt light. We have already read this story in our childhood. You must have read this story in your childhood. आपने ये story बचपन में जरूर पढ़ी होगी. Every day, the donkey started pretending that his foot had slipped in the stream. The man decided to teach the donkey a lesson. Next day, he filled the bag with cotton. On the way, donkey fell into the stream, and the man helped him stand up. But the donkey could not move because the cotton had soaked a lot of water, and the bags were too heavy. The bags were too heavy. पहले दोस्तों प्लीज आप मेरे को ये बताइए, इस स्टोरी में कौन सा ऐसा वर्ड था जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है? जी, was there any word which meaning you don't know? Please check it out. All the students are kindly requested, please check it out whether there was any word whose meaning you don't know. Every word understood. Every word understood according to Mr. Karn. And was there any structure which you couldn't understand? Was there any structure? क्या इस स्टोरी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जो आपको समझ में नहीं आया हो? No, sir. Karan has given me green light. He says that, sir, I understood each and everything in this story. The complete story is there on the screen. I understood each and every pattern, each and every line, and we don't have any sort of difficulty in this one. And I promise to you, Karan is making a promise to me that tomorrow when he'll be on the morning walk, at the time he'll record in his own word the same story. He'll narrate the story. Let's see. Yes, sir. See. So once more, I'm going to read this one. You see in the first line that it's all about a donkey and a man. The story is all about a man and a donkey. He had a pet. The man, he had a pet, and the pet, it was donkey. So that and their business, what was their business? That they used to carry the salt from the rural area or to that from one place to another. They used to sell salt on his donkey. And when they were going to city or when they were going to market, on the way there was a stream, there was a river, there was a stream, there was a canal. They had to cross that one. And the level of the water was only usually the level of the water, it was only up to up to the knee of the donkey. But today that the flow of the water, it was very high. There was a lot more water in the stream. So, and unfortunately that donkey's leg, it slipped, his foot slipped and he fell.
And you know the chemistry of the salt when it come in touch with water. When it come in touch with water, it start melting. It start melting. The same happened there when he fell into the water. It started melting, and it took 2 to 3 minutes or maybe 5 minutes. It must have taken. By the time a lot of salt it had melted. It had melted by that time. When they came out of the steam, when both the man and the donkey, when they came out of the steam, at the time he felt, the donkey felt that it was very light. It was very light. So he had to carry less load. He had to carry less load and he was feeling happy. On the next day, he pretended he behaved and he behaved as if that he was falling and actually he fell. Again, he fell into the water and again the bag of the salt they became lighter. They became lighter and again he was happy. But his master, he noticed this pretension. He noticed that he was pretending and daily he was doing this thing for his comfort. So one day, what did he do? That he stuffed in order to teach the donkey a lesson. In order to teach the donkey a lesson, he stuffed or he filled the bag with cotton. And we know the chemistry and we know the nature of the cotton that it absorb water, it soak water. And when the donkey, when it fell into the water, earlier it was light. Earlier it was light, but now it became heavier. It became very heavier, and it became too heavy for the donkey that he could not carry it, and he had to face a lot of difficulty. See, this was the story I told. ये थी बाय स्टोरी शायद मोस्ट प्रोबेबली सबको समझ सर गया जी भाई वन लाइन ऐड कर सकते हैं कि मास्टर बैडली बिटन you can add रिजल्ट है anything whatever you like from your side. Mr. Khan, these are simply the story. They are for us, they are the helping hand. They are just the helping hand for us. You can add anything, whatever you like to add in between. You can add or eliminate. You can make a new story. You can add anything. You can eliminate anything from the story. Eliminate का मतलब कम करना. ममता कुछ मजे आए स्टोरी में? ममता फोन से क्लास ले रही है, कंफर्टेबल नहीं है. विनीता, लेट मी आस्क विनीता जी. विनीता जी, 2 बार जी लगाना पड़ता है पूछने के लिए. जी सर. सी, डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? सर प्रिटेंडिंग का मतलब नहीं पता चला. एग्जैक्टली, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना बेटा. दिखावा करना जो होता है, प्रिटेंशन, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करना, दिखावा करना. जी. जी, एनी अदर थिंग विच यू डिड अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी? और कोई चीज ऐसी जो विनीता वो कैमरा ऑन करें तो अच्छा लगे मेरे को. जेडी शर्मा या अदर स्लो का भी कैमरा ऑन कर ले भाई, अच्छा लगे जी. एनीवे, लेट मी टेक अप द नेक्स्ट स्टोरी. अगली स्टोरी लेते हैं. यू मस्ट हैव गॉट दिस वन. अगली भी देखना भाई जरूर. यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए पूछिएगा जरूर. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड. टाइटल आपको जरूर समझ में आ गया होगा. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड. डोली, क्या मतलब हुआ इस बात का? जी डोली. जी सुदेश भाई, सुदेश जी, सुदेश भाई. सर आपकी प्रतिक्रिया आपके बोलने से ज्यादा मतलब वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है. एक मिनट ना सुदेश नहीं समझा पाए भाई. सुदेश बात नहीं बनी. एक बार सुदेश ट्राई करते हैं. वंस मोर यू कैन ट्राई मिस्टर सुदेश जी. सर आपका एक्शन मतलब जो आप एक्शन करते हैं वो आपके वर्ड से ज्यादा मतलब भारी होता है. जी जी जी, आपकी बात कुछ नॉट नियरर बट यू आर वेरी क्लोज टू द मीनिंग. कहने का मीनिंग ये है कि किसी को ये सिर्फ बता देना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना, ऐसा कहने से कुछ नहीं है. काम करके दिखाइए, कुछ काम करके दिखाइए. यदि मान लीजिए कि हमारी क्लास में हम सभी को इंग्लिश आ जाती है, मैं पॉडकास्ट में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूं कि मैं ऐसे कर देता हूं वैसे कर देता हूं, मेरी गारंटी होती है, ये होता है वो होता है, और यदि क्लास में ढंग से कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो, बच्चे दुखी रहें, तो फिर उस चीज का क्या फायदा?
हाँ, यदि आप में से मान लीजिए डॉक्टर कर्ण तैयार हो रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, सो दिस इज एन एक्शन। ये तो जो है ये एक्शन है। सिर्फ शब्द ये बोल देना कि मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते, मेरे पढ़ाने का तरीका इतना ये है वो है, इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता है भाई। दैट योर एक्शन, व्हाट यू डू एंड व्हाट एक्चुअली हैपन, सी व्हाट एक्चुअली हैपन, होता क्या है उस चीज को देखते हैं हमें। तो कहता है कि या लेट्स टेक अप द स्टोरी, स्टोरी को लेते हैं। द स्क्रीन इट मस्ट बी क्वाइट लीजिबल या विजिबल, आपके लिए प्रॉपर्ली लीजिबल विजिबल होगी। दो आदमी थे, टू मेन वेंट हंटिंग इन अ फॉरेस्ट, गए थे, कहां गए, वेंट हंटिंग, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। क्या देखा उन्होंने, एक लोमड़ी देख लोमड़ या इस प्रकार से एक मेल, दे सो ए फोक्स, उन्होंने एक फोक्स देखा, एंड बिगेन चेजिंग हिम, एंड बिगेन चेजिंग हिम, चेज का मतलब पीछा करना होता है, और उसका पीछा करने लग गए। दो आदमी थे, जंगल में गए शिकार करने के लिए, एक लोमड़ी को देखा, उसका पीछा करने लग गए, दे बिगेन चेजिंग हिम, द फोक्स रैन फॉर हिज लाइफ, द फोक्स रैन फॉर हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत तेज भागा। सून का मतलब जल्दी होता है, सून द हंटर लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम, लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम। श्लोक इतना आसान सा है, कर दे श्लोक काम। श्लोक टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन रिएक्शन, श्लोक इतना टाइम नहीं लगाते हैं भाई, जल्दी से बता दीजिए। सुन सुन द हंटर लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम। सर उनकी वो उस फोक्स की खोज के लिए। नहीं नहीं, वो 100 मतलब ज्यादा देर उनको ये नहीं कर पाए, ट्रैक नहीं कर सर पाए, उसको मतलब उसको जल्दी ट्रैक नहीं कर पाए वो। जी, श्लोक ऐसे नहीं यार, श्लोक आई एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम यू, श्लोक आपसे तो मैं काफी एक्सपेक्ट करता हूं, बट ये मीनिंग है ये कि वो इतना आगे निकल गया कि वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि किस साइड गया, कहां गया। दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम, यानी कि वो कहां गया इस चीज को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। दे वो लॉस्ट अपने देयर ट्रैक, वो कि अपने और रास्ते से भटक गए। हाँ जी, रास्ते से भटक गए। वे तो रास्ते से नहीं भटके, पर वो किस साइड चला गया अब उनको पता नहीं था। पता दैट नहीं। उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। देयर वाज अ वुड कटर हाउस इन द फॉरेस्ट, देयर वाज अ वुड कटर्स हाउस, एक लकड़हारे का घर था जंगल में, एंड द फॉक्स वेंट, वो उसके अंदर चला गया, एंड बेग्ड हिम, और जाके हाथ जोड़ लिए, जाके हाथ जोड़ लिए कि हे लकड़हारे, जिंदगी का सवाल है, बचा ले यार, जिंदगी का सवाल है, बचा ले। बेग्ड हिम, हंटर्स आर चेजिंग मी, भाई साहब पीछे शिकारी लगे हुए हैं, मारा जाऊंगा, भाई साहब पीछे शिकारी लगे हुए हैं। फाइंड मी अ प्लेस टू हाइड, एक मेरे को छिपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ी सी जगह दे दे भाई साहब। फाइंड मी अ प्लेस टू हाइड, छिपने के लिए जगह दे दे। वुड कटर पॉइंटेड टू हिज हट, एंड द फोक्स हिड इन इट। आसान है, शायद समझ में आ गया। द वुड कटर पॉइंटेड टू हिज हट, उसने उस हट की तरफ इशारा किया, एंड द फोक्स हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है सर, हाइड हिड हिडन होती है, हाइड हिड हिडन होती है, और वहां पर जाके वो जो लोमड़ है वहां पर जाके छुप गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, हंटर केम देयर, हंटर वहां पर आ गए, और उसने वुड कटर से पूछा, क्या पूछा, हैव यू सीन अ फोक्स पास दिस वे। देखिए कई बार ये शायद बात आपको पता नहीं, चलो कौन, करण बता दे, इसका भी नहीं बता करण भाई। हैव यू सीन अ फोक्स पास दिस वे। क्या आपने इस रास्ते से यहाँ पर कोई आप कोई लोमड़ी देखी है क्या? लोमड़ी पास दिस वे, पास दिस वे, इस तरफ से जाती हुई। हुई, यदि जाती हुई होता तो आईएनजी आता है ना पवन ना, भाई करण। हाँ सर। पासिंग दिस वे, मेरे अनुसार ये यू होना चाहिए था, हैव यू सीन अ फोक पासिंग दिस वे, इस रास्ते से जाते हुए। जैसे ऊपर था ना, बिगेन चेजिंग हिम, उसका पीछा, ये तो चलो पीछा करने की सेंस में था, पर ये कई बार ऐसा कहते हैं कि ये जो सेंस वर्ब होती है ना, जैसे सी होता है, हियर होता है, फील होता है, इनके बाद जब वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी नहीं आती है, कई बार ऐसा बोल देते हैं, मीनिंग वही निकलता है। क्या आपने इस रास्ते से, क्या आपने इस रास्ते से फॉक्स को जाते हुए देखा है? एग्जैक्टली ये लाइन निकलती है। वुड कटर सेड, ना भाई ना, मैंने तो नहीं देखी यार, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखी। बट ही पॉइंटेड हिज फिंगर टुवर्ड हिज हर्ट, बट ही पॉइंटेड हिज फिंगर टुवर्ड हर्ट, भाई मैंने तो नहीं देखी, पर इशारा ये कर दिया, मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी, है ना, इशारा यूं कर दिया। द हंटर डिडंट टेक द हिंट एंड दे लेफ्ट, द हंटर डिडंट टेक द हिंट एंड लेफ्ट, और हंटर को, उनको बेचारों को ये बात समझ में नहीं आई कि वो इशारा किस चीज के लिए कर रहा था।
कुछ देर बाद है आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम कहें या आफ्टर वाइल कहें, एक ही बात है। ऊपर इसने लिखा था आफ्टर सम टाइम, अब लिख रहा है आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद। द फोक्स स्लंक आउट ऑफ द वुड कटर्स हाउस। स्लंक आउट एकदम से जंप करके बाहर आना, या जहां से छिपी हुई थी उससे बाहर आना। स्लिंग स्लैंग स्लंक होता है, स्लिंग स्लंग स्लंक होता है। स्लंक आउट ऑफ द वुड कटर्स हाउस एज ही वाज रनिंग अवे, एज ही वाज रनिंग अवे, जब वो वहां से भाग रही थी। एज ही वाज रनिंग अवे, भाग रही। वुड कटर कॉल्ड आउट टू हिम, उसको पीछे से जोर से आवाज लगाई, यू डिडंट इवन थैंक मी। अरे कमाल है, तूने तो मेरा धन्यवाद भी नहीं किया। मैंने तेरा जीवन बचाया, मैंने तेरी रक्षा की, तूने मेरे को धन्यवाद भी नहीं किया। तो फोक्स कहने लगी, आई वुड हैव इफ यू एक्शन हैड बीन एज ट्रस्टवर्दी एज योर वर्ड्स। ओ या है ना। फोक्स said, फोक्स कहने लगी कि आई वुड हैव इफ योर एक्शंस हैड बीन एज ट्रस्टवर्दी एज योर वर्ड। मिस्टर सुदेश भाई, लास्ट पैराग्राफ आपको न्यौछावर है, आपको सौंप रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से कर दो काम। ओ सर, आई विल ट्राई सर। जी सर। फॉक्स ने कहा आई वुड हैव, मैं करती, इफ योर एक्शन, अगर आपका एक्शन मतलब सर नहीं पवन भाई, एक सॉरी सुदेश भाई, एक चीज जरूर ध्यान में रखें, हमें डिटो ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, सिर्फ ओके इस लाइन में भाव क्या निकला आंख में इसके, यानी कि जी। अब बता दीजिए जी, और सर, अपनी भाषा में कोशिश कीजिएगा कि यदि हम डिटो ट्रांसलेशन करेंगे तो मार खा जाएंगे, वो ठीक ही नहीं होती भाई। ठीक है सर। जी फॉक्स सेड आई वुड इफ यू, आई मीन अगर आपके आपका एक्शन भी उतना ही ट्रस्टफुल होता जितना आपके वर्ड थे, तो मैं आपका धन्यवाद जरूर करती। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे आई, व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने मेरे से प्रॉमिस किया, आपने मेरे को कहा जा मेरी झोपड़ी है और उसमें जाके छिप जा। आपके शब्द थे बड़ी ट्रस्टवर्दी थे, देयर वाज अ ट्रस्ट इन योर वर्ड। बट आई ऑब्जर्व व्हेन द हंटर केम टू यू, आई कुड सी, मैं देख रही थी वहां से, मैं वहां से छिप के देख रही थी। यू पॉइंटेड आउट योर फिंगर टुवर्ड मी, यू पॉइंटेड आउट योर फिंगर टुवर्ड द हट। वो तो चलो लकीली दे डिडंट गेट योर पॉइंट, दे डिडंट गेट योर हिंट, वो तो मेरा लक था, वो मेरा एक फॉर्च्यून था कि मैं बच गई। अदरवाइज तूने तो तेरा काम कर ही दिया था, तूने तो मुझे पकड़वाने का काम कर ही दिया था। मैं जरूर धन्यवाद करती। आई वुड हैव थैंक्ड यू, यानी यहां से दो शब्द जो मिसिंग है ना, यानी थैंक्ड यू की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको मिस से एलिमिनेट कर दिया गया। मैं जरूर तेरा धन्यवाद करती। आई वुड हैव थैंक्ड यू इफ योर एक्शन हैड बीन एज ट्रस्टवर्दी एज योर वर्ड्स वर। एज योर वर्ड्स, जो आपके शब्द थे वैसे ही होता तो मैं जरूर धन्यवाद करती। जी भाई, किससे पूछें? जी नीतू लाकड़ा, देयर इज नीतू लाकड़ा। जी नीतू, कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर। जी नीतू बेटा, कुछ स्टोरी समझ में आई आपको? यस सर। कुछ 1-2% कोई ऐसी, या ऐसा लग रहा है कि क्लास ठीक चल रही है? यस सर, बिल्कुल ओके है। बिल्कुल ओके। देखना भाई, कोई बहुत बार हो रहा हो तो जरूर बताना यार, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, है ना जी। ऐसे ही ऐसे करते करते आ ही जाएगी हमें कुछ ना कुछ। एंड यू मस्ट हैव गॉट द स्टोरी आपको जरूर समझ में आई होगी। स्टिल देयर इज टाइम एंड वी कैन टेक द नेक्स्ट वन। एक बार बुल्स प्लाइट, कोई मेरे को प्लाइट का मीनिंग बता दो दोस्तों। इसमें 101 स्टोरी है, इसमें 101 स्टोरी है इस बुक में, जो मैंने आपके पास पीडीएफ भेजी हुई है। लगभग 101 स्टोरीज आर देयर। एक बार सपोज करके देखिए यार, कि यदि हमें सभी बहुत अच्छे से पढ़नी आ जाए, है ना, यदि हमें सभी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़नी आ जाए, तो एक बात तो कंफर्म हो ही जाएगी कि हमें पढ़नी तो आ ही गई है। और पढ़नी आ गई है तो इसका मतलब हमारी समझ में भी आ रही है। ठीक बात है ना। सभी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। एक बार देखना, प्लाइट, आई वाज आस्किंग द मीनिंग ऑफ प्लाइट, में प्लाइट का मीनिंग पूछ रहा था आपसे। द बुल्स प्लाइट, व्हाट डज मीन बाय प्लाइट? कोई भी एनीबॉडी? नो आइडिया? किसी को भी क्लास में किसी को आइडिया नहीं? व्हाट डज मीन बाय प्लाइट?
पोलाइट सर, वो नहीं, पोलाइट दूसरा पोलाइट इज होता है। समथिंग एल्स, पोलाइट कुछ और होता है भाई, है ना। जी। पोलाइट का मतलब मैंने अर्ली स्टेज पे ही सीख लिया था, ये दुर्दशा, मैंने कहीं इसको लिखा देखा था, दुर्दशा, जिसको bad condition. Plight means the worst condition. Bad condition is called plight. Bad condition, worst condition, they are known as plight. The bull's plight तो इसकी बेचारे की क्या दुर्गति आप कह सकते हैं, दुर्गति होना, है ना, दुर्गति या दुर्दशा जो भी आप कहें। एक शाम की बात है, one evening, एक शाम की बात है, a bull was grazing with his friend near a forest. लाइन बिल्कुल क्लियर है। A bull was grazing with his friend in a forest when the sun set, जब सूर्य छिपने को हुआ। When the sun set, his friend called out to him to go home. उसका दोस्त उसे कहने लगा, ओ आजा भाई, ओ आजा चलें, हो गया टाइम, भरा नहीं है क्या पेट तेरा, डोली जैसा हो गया पेट तेरा, भरता ही नहीं है ये, आजा जल्दी। But the bull didn't listen. उसने उसकी he didn't pay heed भी बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं दी बात। When the bull stopped grazing, जब बुल ने चरना बंद किया, the moon and the stars were shining in the sky. The moon and the stars were shining in the sky. रात हो चुकी थी और वहां पर तारे चांद चमक रहा था। He noticed, क्या नोटिस किया? Pair of eyes looking at him from a distance. He saw a pair of eyes. उसने नोटिस किया कि कोई दो चमकती हुई आंखें तेरी तरफ देख रही हैं। At a distance, he guessed, उसने तभी से ही ये अंदाजा लगा दिया कि that का मतलब की होता है it must be a wild animal. पक्की बात है भाई, ऐसे तो या तो कुत्ते की आंखें, है ना, जैसे शायद भैंस की आंखें ऐसी नहीं होती हैं, जो कार्निवर्स होते हैं उनकी आंखें ज्यादा चमकती हैं, शायद बिल्ली की आंखें चमकती हैं, कुत्ते की आंखें चमकती हैं, भैंस या गाय की नहीं चमकती हैं शायद, मुझे पूरा आइडिया तो नहीं है, आपको है क्या आइडिया किसी को? सर डियर की आंखें भी मतलब चमकती है। डियर की टाइगर जी। की, लायन की, इन सब चमकती है। हाँ भाई, हाँ करण, कैट, टाइगर, लायन सब की चमकती है सर। नहीं वो तो सभी कार्निवर्स हो गए, वो तो कैट फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ये तो सारे कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी सभी की आंखें चमकती हैं। चलो ठीक बात है, मैं ये पूछ रहा हूँ जो हर्बीवर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनकी भी चमकती हैं क्या? सर डियर की आई एम वेरी श्योर। डियर तो फिर वो तो डियर तो हर्बीवर्स है। आपके यहाँ कनाडा में देखते हैं कि कभी रात रुत को आप? जी सर, आई सो मेनी टाइम्स इन द मॉर्निंग टाइम बिकॉज आई स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। जी, तो इसमें कोई फैक्ट बात निकल के आया नहीं, इसका मतलब हमारी क्लास आंखें नहीं चमकती, भैंस और गाय की नहीं चमकती है ना सरोज? हाँ, बकरी की भी नहीं चमकती। हाँ, बकरी भेड़ इनकी भी नहीं चमकती हैं। जी, थैंक यू भाई। So he guessed that, उसने ये guess that it must be a wild animal, कोई ना कोई जंगली जानवर है। He began running, बेचारे ने उसने तो भागना शुरू कर दिया। Then he heard the roar of a lion. एकदम से, यानी कि कोई शेर आ गया था, उसको चिल्लाता हुआ दिख रहा था। The bull ran fast. ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? वनीता बता दे मेरे को, वनीता ये जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? The bull ran fast. सेकंड फॉर्म। दिस इज द सेकंड फॉर्म। और थर्ड क्या होती है भाई? रन सर, रन रेन। जी, रन होती है, रन होती है। द बुल रेन फास्ट, वो बेचारा बहुत तेज दौड़ा। विद द लोइन एट हिज हील, समझ में नहीं आई भाई ये लाइन तो। विद द लोइन एट हिज हील, जी, विद द लोइन एट हिज हील्स, क्या मतलब निकला? लॉयन और तेज हो गया। एट हिज हील मींस एड़ियों के ऊपर आ जाना, और ज्यादा तेज दौड़ना। भाई ना, मेरे को जितना आइडिया है कि बिल्कुल बेचारा वो उसकी ये लगा लीजिए कि ही वाज अबाउट टू बाइट हिम, अबाउट टू किल हिम, अबाउट टू कैच हिम, है ना। विद द लॉयन एट हिज हील का मतलब है देयर वाज नो बिग गैप बिटवीन देम एंड द लॉयन वाज अबाउट टू अटैक, अबाउट टू पाउंस, अबाउट टू किल, अबाउट टू कैच, अबाउट टू ट्रैप, आप जो भी शब्द यूज करें, कि बिल्कुल पास में उसको महसूस हुआ। Then he reached a farmyard well. Lit with the fire torches.
और फिर वो कोई फार्म यार्ड था, उसमें फार्म यार्ड वेल, then he reached a farmyard well lit with fire torches. He jumped sorry क्या है? एक मिनट देखना पड़ेगा भाई, let me make it smaller, थोड़ा छोटा कर देते हैं। he jumped over the fence and landed in a goat's pen. जी बकरियों का बाड़ा होता है, उसको पेन बोलते हैं। शेर की होती है उसे डेन बोलते हैं, बकरियों की होती है उसे पेन बोलते हैं। बस कैदे कर्ण की ये बात मैंने पहली बार सुनी है। नहीं सर, पहले बताई थी सर आपने। क्या बताया था? अलग अलग जो जो रहते हैं इनका, उनको अलग अलग उसके नाम नहीं, से अलग अलग हैबिटेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर बकरियों का पेन होता है, ये पहले सुना था आपने? नहीं सर। जी हाँ, यही तो कह रहा था ना। जिस प्रकार से शेर जहां पर रहता है उसे डेन बोलते हैं, बकरी जहां पर रहती है जो बकरियों का बाड़ा होता है उसे पेन बोलते हैं, गोट्स पेन आप कह सकते हैं, गोट पेन। So he reached a farmyard well lit with fire torches. यहाँ पर काफी fire torches and jumped. The goat didn't like this and began hitting the bull with his horns again and again. The bull said, "Friend, a lion was chasing me. I will go away when he leaves. One should not approach mean people for help." जी भाई क्या थी इसकी दुर्दशा? वैसे तो अर्थ क्या निकला, कुछ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी अर्थ वाली बात नहीं थी कि जब वो उसके बाड़े में कूद गया, वो उसको सर मारने लगी कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। कहने लगा कि बहन जी मैं चला जाऊंगा यहाँ से, एक बार मेरे पीछे शेर लगा हुआ है ना, शेर लगा हुआ है, कुछ देर यहाँ रह जाने दीजिए। पर उन्होंने जिद कर ली कि ना तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। कहने लगा, जो स्टोरी का थीम है कि वन शुड नॉट अप्रोच मीन पीपल फॉर हेल्प, कि यदि आपको कभी जिंदगी में मदद की जरूरत पड़े तो कमीन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। मीन का मतलब कमीन है ना, कमीन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो घटिया होते हैं उनके पास मत जाइए, कम से कम उससे सहायता मांगिए जो आपकी सहायता कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज तो इतना ही कर पाएंगे, एक बार टाइम इतना ही परमिट करता है। मिलते हैं कल आपसे इसी समय। कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।